Hi everyone, Namaste. Welcome to the Cotton Academy, Pune. Okay, the students who are watching might be at college state or might have completed their college. So they are thinking of their future job. Means they want to reach from this step to this step job. So Cotton Academy provides you the ladder from where you can move from this step to here. How? You are thinking of which exam I need to pursue and what I need to do. If you are thinking of the bank exam and SSC exam, you are thinking of the syllabus. What to study and what not to study, how to study and what preference I have to study, whether I have to singly prepare for SSC or bank and other exams like LIC and NABARD and FCI. So here's the answer of all your questions in this video. So what you need to do is to analyze the syllabus like analyze the exams which that authority conduct in a year. Like in a calendar year, the number of bank exams: SBI PO, SBI clerk, IBPS PO, IBPS clerk, RRB PO, regional rural banks PO and clerk level, RBI grade and RBI assistant. And another exams like SEBI Security Exchange Board of India, NABARD, National Agriculture Bank, LIC, FCI. These all are central government highly paid and reputed job which you are dreaming for. And SSC. There are 3 levels: SSC, CGL, CHSL and GD. Then what's the difference and what's the common in this? So answer is, for all these 3 exams, SBI, PO and all these 3, you need to prepare yourself for maths, reasoning and English. And in SSC, with all these 3, you need to prepare yourself with GK. These are the foundation subjects which can help you to crack your bank as well as SSC exams. Now we move towards the syllabus. So what's the syllabus? How it is common? Let's check all these. See, phases of exam. One must study the pattern. All the bank exam comprise of like prelims, first step, then mains and then interview. If you are at prelims, that means starting, you need to prepare yourself with maths, reasoning and English. In mains, the difference is there. All the 3 exams we have just read in the earlier slide, like SBI, PO and clerk level, RRB, फिर अपना IBPS, PO and clerk level, all the 3 exams have same pattern at the prelims level. But the difference there is in mains. You can see here, for all the prelims exam like SBI, IBPS, RRB, RBI, these all comprise of reasoning, syllabus comprise of aptitude, reasoning and English. The difference is in the second phase, mains examination, like maths, reasoning, English, GA and CA, general awareness and current affairs. And RRB, in mains exam, in RRB there is computer as well as English. And it's in prelims level, it is only maths and reasoning. So means you have to study the computer, English, maths and English. अगर हम देखा जाए तो कितने सब्जेक्ट पढ़ना है? Mathematics, reasoning, English and computer for all these umbrella exams. So let's discuss in the depth with all the mathematics and syllabus. Starting with the reasoning. Reasoning में क्या? कौन से लेवल पे कितना? कैसे पढ़ना है हमको? कैसे? ये है बेटा order of preference in the prelims examination. Prelim is the first piece of your examination and puzzle and sitting arrangement. This topic comprise the high weightage in your marks. Like अगर 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप assume कर सकते हो कि आपके 5 से 8 क्वेश्चन, या यूँ कहें
10 क्वेश्चन तक भी देखे जा सकते हैं अपने कहाँ पर, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से ही। तो ये एलिफेंटाइन टॉपिक्स हैं, टाइम लगता है, एक्सपर्टाइज लेने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार हो गए तो सारा रोड क्लियर है। फिर अपना आ जाता है अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोइज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ये वाला अपना कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब आपकी सिचुएशन में आपको डाल दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा गया आप क्या करोगे। ये हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम अपनी मेंटल एबिलिटी से, प्योर मेंटल एबिलिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सेट है, मतलब आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपका रीजनिंग का रोड मैप तो क्लियर हो जाएगा। फिर अपन आ जाते हैं अपने मेंस लेवल पे। मेंस लेवल कुछ और अलग से कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करता है। क्या होता है कि प्रीलिम्स के सारे टॉपिक्स ही मेंस में आते हैं, लेकिन अपन ने देखा कि वो सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज मतलब आप डिफिकल्टी लेवल तो थोड़ा ज़्यादा हाई एज्यूम करते ही हैं। फिर अपने जो डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं जो मेंस में अलग होते हैं, वो अपने डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन। डाटा सफिशिएंसी इज नाइदर सेपरेट टॉपिक। आपको सारी, अगर ये चीज़ आपने सारे ऊपर के टॉपिक्स के ऊपर एक्सपर्टाइज हासिल कर ली तो आपको कुछ डाटा दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि हम क्या आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। फिर मशीनरी इनपुट एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है, इसमें आपको मेहनत लगेगी, वो भी एक्स्ट्रा वाली थोड़ी सी, वो भी लॉजिकल रीजनिंग। ये 3 टॉपिक होते हैं जो हमको प्रीलिम्स और मेंस में अलग होते हैं। हमको इसके लिए 3 टॉपिक्स को अलग से तैयार करना पड़ता है मेंस लेवल पर। तो आप देखेंगे कि हम पूरे रीजनिंग सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमारे होते हैं पजल, सेटिंग अरेंजमेंट, एलिफेंटाइन टॉपिक्स, फिर मिसलेनियस टॉपिक्स, जिसमें फिर अपना आ जाता है ये थर्ड वाला पार्ट मेंस का, जो मेंस एग्जाम में आता है। अगर ये 3 प्रेफरेंस में भी आप कर सकते हैं। पहले आपने ये किया, फिर अपना मिसलेनियस वाला पार्ट खत्म कर सकते हैं, फिर ये हो जाए तो अपन इस वाले लेवल पर आ सकते हैं। ये अपनी हो गई रीजनिंग की बात। फिर अपन आ जाते हैं अपन कॉन्ट्स वाले पार्ट पर। उसमें क्या, कॉन्ट्स मतलब मैथ्स को भी आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। आपकी स्पीड मैथ्स, अर्थमेटिक और डीआई डाटा एनालिसिस। इसको कैसे समझें, कैसा ऑर्डर प्रेफरेंस, किसको हम ज़्यादा वेटेज दें, कैसे पढ़ें, तो आप पिरामिड अज्यूम कर लो। जैसे कि आपका बेस, आप बेस अपना कर रहे हो, बेस है आपका जस्ट स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स में क्या, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, सीरीज एंड डाटा इक्वेशन। अगर आपने ये 4 टॉपिक कर लिए तो मैथ्स का बेस क्लियर हो गया। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बेस क्लियर मतलब थोड़ा सा आप अज्यूम कर सकते हो कि आप 50% एक्सपर्टाइज पर आ गए हो, और ऐसा होता भी है कि अगर 35 क्वेश्चंस आते हैं तो आप अज्यूम कर, मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन यहीं पर आ जाएंगे। सिर्फ 4 चैप्टर से 12 क्वेश्चन आना मतलब इट्स वर्थ थ्रू। आप इसमें ज़्यादा टाइम देखिए, इस पर एक्सपर्टाइज अपन लेके आगे बढ़ सकते हैं। फिर अपन आ जाते हैं अपने अर्थमेटिक वाले पार्ट पर। अर्थमेटिक पार्ट वाला मतलब सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट, ये होता है हमारा सेकंड पे। इसमें हमको देखना पड़ता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड परसेंटेज। दीज 2 चैप्टर्स आर द बेस ऑफ द होल अर्थमेटिक पार्ट। अगर आपने ये टॉपिक कर लिए तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, ये आप बहुत क्लियर हो जाएगा। और रेशियो प्रपोर्शन से एज तो डायरेक्टली क्लियर होता ही होता है। मिक्सचर एलिगेशन से परसेंटेज अगर क्लियर है तो मिक्सचर एलिगेशन अपने आप बहुत जल्दी हमको समझ में आ जाता है। फिर टाइम एंड वर्क, ये ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं कि जैसे कि 1 मैन 2 women डू अ सेम सेट ऑफ वर्क, हाउ सेम वर्क कैन बी डन बाय 5 men 6 women। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में आते हैं। तो टाइम एंड वर्क है इजी, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझो और आगे अपना हो जाता है। तो अपन देखेंगे कि भले ही आपको 8 चैप्टर लग रहे होंगे, लेकिन आप अगर 2 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके सारे चैप्टर में वो ईजी हो जाते हैं। और ईजी बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अर्थमेटिक में अपन ने ये किया तो अपना ये सब क्लियर हो जाएगा। मतलब अपन ये वाली स्टेज पर पहुंच गए, मतलब थोड़ा सा और बचा है वो 10 मार्क्स का। वो अपना आ जाता है डीआई वाला पार्ट में। डीआई वाला डाटा एनालिसिस। इसमें क्या होता है, अगर अर्थमेटिक किया, अगर आप यहाँ पहुँचे तो आप यहाँ तो पहुँच ही जाओगे। अगर आपने अर्थमेटिक पे ग्रिप लाई, एक्सपर्टाइज करी, तो आप डीआई वाला पार्ट आसानी से कर सकते हैं।
बेसिकली ये होता है कि इसमें स्पेशलाइजेशन कैसा कि अगर अपन एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं तो पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन को हम कम टाइम में कर पाते हैं उसको अच्छे से। जैसे कि अगर हम टाइम एंड वर्क को अच्छे से समझा तो स्पीड टाइम डिस्टेंस हम अच्छे से समझ सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से समझा तो हम पार्टनरशिप अच्छे से कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा अलग चला जाता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बेस्ड थोड़ा सा एनालिटिकल हमको इसमें करना पड़ता है। बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, ये अलग टॉपिक हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से समझ में आता है, ये टॉपिक्स अच्छे से आते हैं तो आप बोट स्ट्रीम और पाइप एंड सिस्टम अच्छे से कर पाते हैं। पाइप एंड सिस्टम या बोट स्ट्रीम ये वाले जो टॉपिक हैं बेसिकली अगर कहें तो मेंसुरेशन वाला पार्ट, ये बेसिकली होते हैं फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला पढ़ो, फॉर्मूला याद नहीं करना है, समझ के करना है। अगर फॉर्मूला अपन समझ गए, एक बार दिमाग में टाल लिया तो मेंसुरेशन ये हो जाता है। तो आपको लगेगा इतना अरे बाप रे 7 और ये 15 और 15 और 4 19 टॉपिक तो हमसे नहीं होगा 6 महीने में, लेकिन इट्स वर्थ ट्रू, लेकिन हो जाता है। कैसे? आप इसमें और इसमें 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देके ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। आपको लगेगा जब स्टार्ट करने बैठोगे अरे यार ये तो बहुत लंबा जा रहा है, मेरे से हो नहीं रहा, लेकिन ये हो जाएगा एट लास्ट। आप भले ही आप 1 से 2 आपने 1 मंथ इसमें लगा दिया और 1 मंथ इसमें लगा दिया तो आप बिलीव करेंगे कि आपके 1 मंथ में ये इतने पूरे टॉपिक अगर आप लग कर बैठ गए तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मोटा ज़्यादा हाई भी गए, ये तो मैंने बहुत जल्दी बता दिया एक्सपर्टाइज वाला, लेकिन अगर आप मोटा तौर पे कहा जाए तो 1.5 और इसको मान लेते हैं 2 मंथ्स, ये इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ये अपना हो जाएगा इतने टाइम में। तो पैनिक होने की नहीं, नंबर ऑफ टॉपिक्स नहीं, नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें कि ये तो आगे अपना रोड तो क्लियर है, ठीक है। तो हमने देख लिया आपने मैथ्स की, अब बात आती है प्रीलिम्स और फिर अपन क्या करें, मेंस में क्या अंतर हो जाता है? कुछ नहीं बेटा, इसका मतलब लेवल, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। जो आप प्रीलिम्स में फेस कर रहे होंगे थोड़ा सा टफ लेवल आपको मेंस में मिल जाएगा। ये अपनी हो गई मैथ्स का। फिर अपन आ जाते हैं अपने इंग्लिश वाले पार्ट पे। इंग्लिश में क्या, इधर देखा जाता है कि 2 सेट ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं। एक स्टूडेंट को लगता है इंग्लिश बहुत आसान है, मुझे इसको पढ़ना नहीं है, मैं तो ऐसे ही कर लूँगा। दूसरा सेट ऑफ वो लोग लगता है इंग्लिश बहुत टफ है, मेरा एग्जाम रोक देगी अगर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा रोज़, तो वो 2-3 घंटे इंग्लिश ही पढ़ते रहते हैं। लेकिन इंग्लिश को मिड वे में पढ़ना चाहिए। इंग्लिश ऑल्दो इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन हमको मिड वे में चलाना चाहिए इंग्लिश को। अब मिड वे में कैसे, वो अपन देखते हैं। जैसे कि अपन ने देखा कि बेसिक हमको इंग्लिश में, अपन देखेंगे सिलेबस क्या है, लेकिन अपन टॉपिक को देखें कि हमको पढ़ना क्या है इंग्लिश में। तो बेसिकली अपनी ग्रामर में हमने देखा तो टेंस, नाउन, pronoun, adjective, all that we need to study and go through that. And what इसके बाद हमको पढ़ना रहता है vocabulary आपको डायरेक्टली मीनिंग नहीं पूछेंगे, लेकिन वो आपको असिस्ट करने वाले हैं आपके सारे टॉपिक्स को कोट करने के लिए, इसको क्रैक करने के लिए। फिर अपना बेसिकली आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसको बेसिकली एक दिन में डेवलप नहीं किया जा सकता, ना इसमें ज़्यादा टाइम लगा के बैठने की, ऐसा नहीं कि दिन रात अपन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने बैठ गए तो अपना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू डेवलप योर कैपेसिटी बाय रीडिंग डेली। अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए रीडिंग के लिए। रीडिंग कैसे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, ये नहीं कि पूरे दिन बैठ गए पढ़ने के लिए, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। अपन आधे घंटे, हाफ एन आवर इज जस्ट इनफ। या अगर अपन ने एक पूरा एडिटोरियल भी पढ़ लिया 1 गो में, ऐसा नहीं कि अपन उठ के आधा पढ़ा फिर उठ के चले गए, ऐसा नहीं। अपन 1 गो में अगर उसकी स्पीड कैपेसिटी को डेवलप करते हैं उस चीज़ को समझने की, जैसे मतलब गिद्ध की आंखें फटाक से पढ़ लेती कि उसमें लिखा क्या होगा, हमको वही चीज़ डेवलप करनी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हमको फटाक से 1 थ्रू स्टडी रीड लेना, उतना ही टाइम मिलेगा हमको, फिर हमको आंसर तक पहुंचना है। वो चीज़ आपकी तब आ सकती है जब आप अपनी कैपेसिटी को डेवलप करोगे रोज़। मतलब अगर आप इसमें अगर हाफ आवर भी दे रहे हो तो इट्स मोर देन इनफ, लेकिन कैसे, फ्रॉम द इनिशियल स्टेज, नॉट एट द लास्ट स्टेज। फिर अपना आ जाता है वोकैबुलरी वाला पार्ट। वोकैबुलरी मतलब डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसको भी हम एंड मोमेंट पे नहीं पढ़ सकते, इसको भी हमको धीरे धीरे एक टेक्निक से हमको पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने इनिशियल लेवल में 10 शब्द रोज याद कर लिए, फिर हमने 20 कर लिए, फिर 30 कर लिए, ऐसे बढ़ाते जा सकते हैं हम, और एट लास्ट हमारे पास एक पूरी डिक्शनरी हम चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया बन सकते हैं अगर हमने ये स्टेप करी तो।
लेकिन हमको ये रीडिंग वोकैबलरी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इनडायरेक्टली सब में आना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब तक मीनिंग नहीं समझोगे आगे कैसे बढ़ेंगे, और इनडायरेक्टली आपको ये सब चीज़ों में काम आने वाला है। ग्रामर, आप नोटिस करेंगे कि इंग्लिश इज़ नॉट इंग्लिश, इंग्लिश इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। एंड व्हाट इज़ लैंग्वेज? जिसकी ग्रामर हो, ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज है। ग्रामर क्यों? क्योंकि हमको रूल्स रेगुलेशन पता होंगे तभी तो हम फ्रेमिंग कर पाएंगे अपने सेंटेंस की, तभी तो हम एरर स्पॉटिंग कर पाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम कैसे डालेंगे, पैराग्राफ फिलिंग कैसे करेंगे। हमको इसके लिए ग्रामर कोई भी बैंक एग्जाम अपने सिलेबस में ऐसे लिख के नहीं देता, लेकिन हमको ग्रामर पढ़नी होती है। ग्रामर पढ़ ली, वोकैबलरी पढ़ ली, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया, मतलब हम अपने 90% सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं ऐसे। फिर हमको पढ़ना क्या है? अगर सिलेबस वाइज देखें तो हमको देखना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वैसे डिस्कस किया, जिसमें अपन को एक पैराग्राफ सेट दिया रहेगा, हमको आंसर तक पहुंचना रहेगा उसमें। फिर क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, फिल इन दी ब्लैंक्स, इसमें आपकी वोकैबलरी काम आने वाली है, ग्रामर भी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो डायरेक्टली वोकैबलरी का पार्ट है, आप समझ जाओ। ये चीज़ रहती है कि दो वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, लेकिन हमको कौन सा अप्रोप्रिएट कब यूज़ करना है ये हमको सीखना पड़ेगा अपनी वोकैबलरी इनरिच करके। फिर आता है पैराग्राफ कंप्लीशन। ग्रामर वोकैबलरी मैंने बोला था इस चीज़ से ये बेस होता है, इसी से आप आगे बढ़ने वाले हैं। फिर आपका आ रहा था एरर स्पॉटिंग। ग्रामेटिकल एरर या सुटेबल वर्ड वहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है, तो उस चीज़ को हमको एरर स्पॉट करना है। फिर मिसलेनियस ऑल दैट पार्ट। बेसिकली अगर आप इतना करते हैं डेली तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज तो क्रैक है, उसमें आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सही है, अपन को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका एंड मोमेंट पे पैनिक भी नहीं होगा और आप इस पे ईज थ्रू होते जाओगे। फिर अपन देखते हैं, ये तो अपनी हो गई प्रीलिम्स की बात, जो प्रीलिम्स में सारे एग्जाम SBI, IBPS, RRB में कॉमन था। फिर अपन आ जाते हैं अपने जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट पर। जनरल अवेयरनेस पार्ट में हमको बैंकिंग डोमेन के लिए क्या करना पड़ता है? बेसिकली हमको पढ़ना पड़ता है करंट अफेयर्स। वही इंग्लिश जैसा हाल है, एट मोमेंट आपको लगता है कि हम करंट अफेयर्स लास्ट में बैठ के पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। इसको भी हमको धीरे, मतलब जैसे चाय बनाते हैं धीरे धीरे पकती रहती है, वैसे ही हमको करंट अफेयर्स में भी करना है, धीरे धीरे पढ़ना होता है। डेली आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए, या आप जहाँ पर भी आपको एक से नोट्स पाइल अप करके रखने चाहिए जिससे कि आप रिवीजन कर सकें। करंट अफेयर्स। फिर अपना आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसको बोला जाता है CA एंड BA। इसमें आपको दोनों में एक्सपर्टाइज, BA में भी और CA में भी एक्सपर्टाइज करनी ही पड़ती है। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस में मतलब आपको बैंकिंग हिस्ट्री, उसके ट्रेंड्स, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेंड्स, हिस्ट्री, सब के बारे में पढ़ना होगा। ये होती है बैंकिंग GK वाला पार्ट। और स्टैटिक GK इसमें बेसिकली नहीं आती, लेकिन अगर करंट अफेयर से वो रिलेटेड है तो वो आ जाती है, लेकिन उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योर करंट अफेयर्स, यू आर प्रिपेयरिंग योर होल GK पार्ट। एंड आपको लेकिन इस पे ध्यान देना पड़ेगा, GA वाले पार्ट में आपको अपनी बैंकिंग टर्म्स में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बैंकिंग ट्रेंड्स, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी हिस्ट्री, ये सब के बारे में हमको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। फिर अपना पार्ट आ जाता है स्टैटिक GK। बेसिकली अपन ने बोला था कि +3+1 का कॉन्सेप्ट चलता है। 1 क्या अलग है, जो SSC में 3 अपन कर लिया और अपन ने GK वाला पार्ट करा, तो अपनी SSC के हम सारे एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि CHSL, CG, CGL एंड GD वाला पार्ट। GK में हमको क्या देखना पड़ता है स्टैटिक GK में, वो है हमारा पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड ऑल दैट। हमको ये वाला पार्ट अपना कवर करना पड़ेगा। बेसिकली SSC के लिए GK वाला पार्ट कवर करना पड़ेगा। तो आई थिंक नॉट इज़ क्लियर कि आपको एक जो फाउंडेशन सब्जेक्ट है, जैसे कि अब हमारा कौन सा हो गया, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड GK वाला पार्ट, ये फाउंडेशन अगर आप अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं, सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप अम्ब्रेला एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इस चीज़ में कौटिल्य अकेडमी आपकी हेल्प करता है। इंटेंसिव क्लास विद, जैसे कि हमारी ब्रांचेस है पुणे में हड़पसर एंड नवीपेट,
provides morning and evening batch. And what our specialty is, I told you from the first stage we will take you to the final step, जिससे कि आप अपना ड्रीम को पूरा कर पाएँ. So how we aid you? By providing the classroom session, intensive classroom with the corresponding doubt sessions and specialized faculties for the every subjects, and we can test to evaluate your study, used to evaluate how you are performing, how what you get or not. Then there is a facility of computer lab that you can use. So this the facilities we are providing at our academy. सबसे बड़ी बात तो क्लासरूम सेशन बेटा. अगर अपन देखते हैं क्लासरूम में 1-to-1 डाउट क्लियरेंस सेशन होता है जिसमें आप अपने डाउट ऑन स्पॉट पूछ सकते हैं. वो आपका 5 days वर्किंग क्लास होती है और वीकेंड्स में आपका रिवीजन होता है. ये इस चीज़ से आप और वीकेंड टेस्ट से आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, या आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी वीकनेस जा रही है, आप इससे आगे कैसे इम्प्रूव करें. और कंप्यूटर लैब, हम जानते हैं सारे एग्जाम्स आजकल ऑनलाइन CD बेस्ड हो गए हैं, तो वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द कंप्यूटर लैब फैसिलिटी इन आवर इंस्टीट्यूट. सो दिस हाउ वी कैन हेल्प you in your examination. So I find you got thorough information of the syllabus and all the exams. Thank you.